a lot of people had asked me कि 100 तक कैसे पहुंचे in terms of CET because they are struggling to reach even triple digits. अब 100 is a decent number to reach purely because इससे ना काफ़ी सारे options open हो जाते हैं. Now I'll just discuss why 100 is important for those of you who believe कि everything is linked to 150, 160, 180 and so on. ऐसा नहीं है. 100 अगर cross होता है you will get a decent percentile because of which you stand a chance to get into at least the PGDM courses of colleges. अगर PGDM, MMS, MBA के बीच में difference नहीं पता, I will link the relevant video in the description box below. Do have a look at it. Practically कोई difference नहीं होता, fees ऊपर नीचे हो सकती है, but otherwise the entire pedagogy or the entire the philosophy of the program remains more or less the same. तो उसमें कोई difference नहीं है. But अगर 100 पहुँचते हो तो काफ़ी सारे options open होते हैं. So those of you who are struggling to reach 100 when it comes to CET mocks, तो क्या करना चाहिए ये देख लेते हैं यहाँ पे. So first thing I would understand is why you are not able to reach the 100 या फिर क्या common mistakes यहाँ पे हो सकती हैं. So I have enlisted a few things that you will be also making or these mistakes that you will also be making when it comes to your mocks. तो देखना which all are there that you can identify with, and then I will show you examples of what all these mistakes can translate into during the actual test. और लास्ट में बताऊंगा कि क्या चीज़ है जो कर सकते हैं. Now I am thankful for one of our subscribers who was kind enough to share his ID and password for the IMS SIM CETs that are there, and उसको मैंने benchmark लेके यहाँ पे judgment पास किया हुआ है. तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे mistakes या areas of improvement दिखाई दिए. So what all are the common mistakes? The first and the most important thing is weak concepts. ठीक है. So the first thing that comes to my mind is there is this popular video game जहाँ पे there is this one dialogue which is repeated a few times आगे जाके भी. तो इसमें basically होता है that someone says that they are sorry and the other person says that do not be sorry, be better, right? So यही चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है, weak concepts. A lot of us have weak concepts, और ये मतलब काफ़ी mainstream concepts भी लोगों के weak हो सकते हैं. तो अगर weak concepts लेके एग्जाम में जाओगे तो it will be very difficult for you to cross that 90 और 95th percentile. बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगा. So please do not have any mainstream weak concepts. I'll talk about some concepts that you need to have in place at the end of this video. But कोई भी concept weak नहीं होना चाहिए. At least the ones that are very common, उनको तो प्लीज वीकनेस में अपने मत काउंट करो. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर मार्क्स बिकॉज कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं जो लोग 45 सेकंड्स रादर 1 मिनट में पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट देन यू आर लूजिंग आउट ऑन रैंडम मार्क्स. द सेकेंड थिंग इज लैक ऑफ प्रैक्टिस. चलो मैंने कहीं से एक चीज़ पढ़ ली बट मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया है. आई हैव नॉट इम्बाइब्ड इट. तो बहुत डिफिकल्ट होगा फॉर मी टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दी थर्ड थिंग इज लॉपसाइडेड इन्वेस्टमेंट्स. अब लॉपसाइडेड इन्वेस्टमेंट्स का क्या होता है, मैंने एक क्वेश्चन के अंदर 5 मिनट डाल दिए और उसके बाद अगर मुझे 1 मार्क भी मिलेगा तो भी डू यू थिंक इट इज वर्थ दैट काइंड ऑफ एफर्ट? नॉट रियली. तो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सीईटी के अंदर एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू गिव यू 1 मार्क. इफ समवन टेल्स यू फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 till 1000, उसके लिए भी तुमको 1 मार्क ही मिलेगा. और कोई पूछेगा 2 + 2 का वैल्यू कितना होता है, उसके लिए भी 1 ही मार्क मिलेगा. नाउ विच वन वुड यू लाइक टू डू? यू वुड डेफिनेटली वांट टू डू 2 + 2 = क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन ना, बिकॉज वहां पे यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क एकदम, मतलब 5 सेकंड में तुमको 1 मार्क मिलेगा. बट जो बड़ा वाला क्वेश्चन होगा उसमें तुमको 3, 4, 5 मिनट में 1 मार्क मिलेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड विच इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू गिव यू दैट 1 मार्क क्विकली. तो यहाँ पे लॉपसाइडेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. आई विल शो यू द एग्जांपल्स ऑफ दैट. बट बहुत सारे लोग ये वाला चीज नहीं समझ पाते. दे जस्ट वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन बिकॉज मे बी दे हैव सीन इट समवेयर और मे बी दे थिंक दैट दे विल बी एबल टू सॉल्व इट, और थोड़ा सा एफर्ट लगाऊंगा तो हो जाएगा. ये काफी मिसकंसेप्शन होता है बिकॉज ऑफ विच दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन अ क्वेश्चन दैट डज नॉट डिजर्व दैट काइंड ऑफ अटेंशन. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके भी. टाइम मैनेजमेंट. अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गुड एट टाइम मैनेजमेंट. दे डोंट नो व्हेन टू लेट गो ऑफ अ क्वेश्चन. मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर मुझे छोड़ना है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर मी टू फिगर आउट कि मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहा है करके, राइट? इन केस ऑफ टॉपर्स और पीपल हु डू रियली वेल, दे विल फिगर आउट दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन. या तो उनको सॉल्व करने आएगा ही नहीं, या तो सॉल्व कर पाएंगे बट बहुत टाइम लगेगा. ये डिसीजन मेकिंग के अंदर ना उनको 10 से 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता. दे डोंट नीड टू रीड द एंटायर क्वेश्चन टू फिगर दिस थिंग आउट. तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन द 50s and 60s, मेक श्योर दैट योर टाइम मैनेजमेंट इज स्पॉट ऑन. जितना जल्दी डिसीजन करोगे उतना यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट बेटर क्वेश्चंस at the end, जो शायद तुमको मार्क्स देंगे in a quicker amount of time. Uncertainty. A lot of people can't deal with uncertainty. तो मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है. So what should I do about this particular question?
शुड आई अटेम्प्ट इट, शुड आई नॉट अटेम्प्ट इट। तो ये अनसर्टनिटी के साथ ना बहुत लोग बहुत सीमलेसली डील नहीं कर पाते। दे ऑलवेज फील स्कैर्ड कि अरे अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया तो शायद मेरे मार्क्स नहीं बनेंगे, अगर मेरे मार्क्स नहीं बनेंगे तो मेरी परसेंटाइल नहीं आएगी, एंड दे गेट इनटू दैट स्पाइरल। सो अनसर्टनिटी इज वन थिंग दैट किल्स अ लॉट ऑफ चांसेस। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली सर्टन कि क्या करने वाले हो टेस्ट के अंदर। जितना ज़्यादा सर्टन होगे उतना ज़्यादा तुम्हारा डिसीजन मेकिंग ईजी होगा, एंड जितना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे उतना ज़्यादा यू विल face the kind of situations that will eat your time when it comes to the actual test. Giving up in the middle, I will show you one example of this, one big example of this, कि कैसे मतलब you might feel disappointed, discouraged, यार ये छोड़ दो, मुझे करना ही नहीं है, I will just throw my pen away and I'll be like मुझे ये करना ही नहीं है, this is not meant for me, I will prepare again and come back again next year. And then you suddenly realize कि यार अगर मैं कर लेता ये 10-15 मिनट, अगर मैं टाइम पास नहीं करता या फिर अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देता या कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देती, then what would have happened is I would have made up for it and I would have maybe got 10-15 more marks. I would have had a chance of getting into a decent college this year itself. So giving up in the middle is again something that a lot of people do, especially people who are not having fun while solving the test. जो लोग जिनको पता है कि कम स्कोर आने वाला है वो लोग काफ़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं. I ask you a question and you will suddenly be like नहीं मुझे आंसर बताओ, जल्दी से मुझे आंसर बताओ. That is not a good trait when it comes to facing aptitude tests. The next thing is silly mistakes. अब सब कुछ ठीक से कर लिया, सब पूरा बना लिया, बट लास्ट में आके मैंने कुछ तो एक रैंडम ऑप्शन मार्क करके मैं आ गया. You invested the right amount of time, you followed the right approach, you calculated everything and suddenly you are marking something else as the answer. तो ये भी एक बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है, silly mistakes. If you are making it, then you will feel very bad about it, right? So काफ़ी the exponentially you will feel bad about making a silly mistake. एंड सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है नो गेस वर्क. पीपल जनरली थिंक दैट गेस वर्क एंड परसेंटाइल आर रिलेटेड. अगर मैं ज़्यादा गेस करूँगा तो मेरी परसेंटाइल कम हो जाएगी, एक्यूरेसी कम हो जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन गेस विदाउट द फियर ऑफ अफेक्टिंग योर परसेंटाइल. ऐसा कहीं पे भी कुछ भी इंडिकेशन नहीं दिया गया है दैट गेस वर्क इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू बैडली. अगर उनको तुम्हारे लिए गेस वर्क को लेके कुछ पेनल्टी देना होता है, तुम्हें पेनल्टी देनी होती, they would have definitely ensured that there is some negative marking. But CET के अंदर from what I remember instructions also clearly state that in case you do not know the answer to a question, it is still recommended that you guess because negative marking is not present at the CET. तो guess work कर लो. अगर उससे 100 के ऊपर जाओगे तो फिर definitely you will get a lot of confidence going into your test. अब देखते हैं कुछ examples जहाँ पे we will see कि क्या क्या यहाँ पे गलतियाँ कर सकते हैं. The first thing is ये DI के अंदर या QADI सेक्शन के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन सेट 1 क्वेश्चन 1. अब यहाँ पे 4 minutes 52 seconds have been spent. The attempt was made but the accuracy is not there. So यहाँ पे almost 5 minutes spent किए हुए हैं मैंने and then I am not getting it right as well. This basically tells me a lopsided investment. I decided that I will spend 5 minutes on this set. अब मेरा expectation ये है कि 5 मिनट में यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा. I am going to get 4 or 5 marks. Now if you want to get 100 marks, let's say in 150 minutes, you have to get an average of 0.66 marks per minute. ठीक है, तो हर 3 मिनट में 2 मार्क्स मिलने चाहिए. यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किए हैं 5 मिनट. अब 5 मिनट के अंदर तो मुझे ऑफकोर्स 2.5-3 मार्क्स तो मिलने चाहिए था एटलीस्ट इफ आई एम लुकिंग एट अ सेट. बट यहाँ पे मैंने 5 मिनट डाल के एक भी मेरा आंसर राइट नहीं हुआ है, या वन आंसर क्वेश्चन दैट अटेम्प्टेड डिड नॉट गेट इट राइट. दिस इज एन अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ लॉपसाइडेड इन्वेस्टमेंट. यू थॉट दिस इन्वेस्टमेंट वुड मेक सेंस बट वो सेंस नहीं बना. ठीक है, आगे जाके इसमें और एक चीज़ देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट भी कैसे आ जाता है. नाउ दिस इज द सेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब ये सेट अगर मैं देख रहा हूँ एंड यहाँ पे अगर मैंने 5 मिनट इसके अंदर लगाए हुए हैं, आई एक्सपेक्ट माई आंसर टू बी राइट. अब यहाँ पे सब कुछ ही दिया हुआ है. यू नो दैट डिपार्टमेंट 1 कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 19% एंड डिपार्टमेंट 1 के अंदर 16:17:9 ये एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स और डायरेक्टर्स का अपने को स्प्लिट पता है. नाउ इफ समवन इज लाइक रियली गुड एट देयर क्राफ्ट एंड 16 + 17 + 9 अगर कर देते हैं 42 मिलता है, यू विल सडनली रियलाइज दैट 42 इज अ फैक्टर ऑफ 1 to 600. तो मुझे यहाँ पे अच्छे अच्छे नंबर्स मिलने चाहिए एंड एनीवे अच्छे नंबर्स मिलने चाहिए बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू फिगर आउट द नंबर ऑफ पीपल. तो नंबर ऑफ पीपल तो इंटीजर ही होता है, तो सब कुछ सब चीज़ से डिविजिबल होना चाहिए. नाउ आफ्टर दिस इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक देन दैट टेल्स मी दैट यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट इनफ. आई एम श्योर एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज की रेशियो क्या होता है करके. बट अगर मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, अगर मैं 33, 17, 13, 17 ये सब नंबर्स देख के अगर मैं डर जाता हूँ ना, देन इट्स अ प्रॉब्लम. दैट टेल्स मी दैट यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ. तो प्रैक्टिस अगर ढंग से करोगे, यू विल नॉट बी स्कैर्ड ऑफ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन एनी मोर.
नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब यहाँ पे है क्वांट का क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। अगेन लुक एट दिस क्वेश्चन, अ ट्रेन 110 मीटर्स लॉन्ग ट्रैवलिंग एट 81 किलोमीटर्स पर आवर, सेम डायरेक्शन 63 किलोमीटर्स पर आवर 40 सेकंड्स में कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है। अब रिलेटिव स्पीड के अंदर दी ओनली प्रॉब्लम दैट आई कैन सी हियर इज स्पीड जो है वो किलोमीटर्स पर आवर में दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में है, टाइम जो है वो सेकंड्स में है। यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड। अब उसके लिए अगर पता है 5/18 वाला एक फैक्टर होता है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वेरी इजीली। In fact, a lot of these toppers that attempt this test would have solved this question जितना टाइम मैंने यहाँ पे बात करने में स्पेंड कर दिया, ठीक है। Now if you look at what has happened here, 5 minutes 36 seconds have been spent on this question and इसको मार्क ही नहीं किया है आंसर इसका। Now that is a problem, right? तो यहाँ पे कुछ तो मार्क कर लेते। If you have spent 5 minutes 36 seconds, one, it's not a good enough investment. It's a very bad investment to be very honest. Because यहाँ पे 81 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 4.5 into 5, कुछ मिलेगा 22.5। यहाँ पे अगर 63 into 5/18 करोगे, again you are going to get 3.5 into 5 और 16.5, कुछ तो तुमको मिलेगा 17.5 रादर। तो ये सारी चीजें मिलेंगी and you will be able to solve this question। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते इसको सॉल्व, बट इसको 5 मिनट अटेम्प्ट करना और फिर मार्क नहीं करना, दैट टेल्स मी अ लॉट दैट देयर इज अ लॉपसाइडेड इन्वेस्टमेंट। मतलब 5 मिनट मुझे लगे समझने के लिए कि ये क्वेश्चन में से नहीं हो रहा, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। प्लस वीक कॉन्सेप्ट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट यू विल सी इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। सो कॉन्सेप्ट्स अगर वीक हैं एंड अगर समझ में नहीं आ रहा है कि so let's say for example I know that my concepts are weak, I don't know relative speed at all, तो मैं इसको देखूंगा, I understand this is a relative speed question within 30-40 seconds और फिर मैं छोड़ दूंगा ना इसको। I need not spend 5.5 minutes on this to understand कि मेरे से ये सॉल्व नहीं हो रहा। That is basically a problem which a lot of you will be facing। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स मत करना, at least in your first round। Get those 40, 50, 60 attempts under your belt and उसके बाद ना अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा to attempt the 61st question। तो that is what I'm talking about। अब यहाँ पे टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। ए बी सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन x days, A would have taken twice the number of days, B would have taken 4 more days, C would have taken 9 more days। अब ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसको सॉल्व करने के ब्रॉडली मे बी 2 तरीके हैं जो कर सकते हैं। ऑन विच डे वुड A B C वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द टास्क, तो यहाँ पे एक चीज़ है 4 3 2 1, तो 3-4 दिन में इनके काम हो जाएंगे। सो यहाँ पे द प्रॉब्लम इज दैट यू विल हैव अ वेरिएबल जिसको फ्रैक्शन मेथड में डाल के करना पड़ेगा। Now, if you don't really have good concepts, you will be able to you will not be able to solve this particular question. But यहाँ पे बात कर रहा हूँ uncertainty की, because यहाँ पे 1 minute 6 second लगा दिया to know that you will not be able to solve this question. So whatever attempt you made here was out of hope कि चलो मैंने hope किया है कि शायद ये मेरा ठीक हो जाए तो मैं बच जाऊँ, but ऐसा नहीं है। तो ये अनसर्टेनिटी है जो किल करेगी तुम्हारे चांसेस को। इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ टाइम एंड वर्क एंड ये अगर फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं दिख रहा मुझे, आई जस्ट लेट गो ऑफ इट विद इन द फर्स्ट 10 15 20 सेकंड्स, आई वुड हैव स्टिल सेव्ड 30 40 सेकंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो यू विल से 19 सेकंड्स है और राइट भी है, तो इसको लेके क्या कंप्लेंट है? इसको लेके मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेंट है दैट एंड अगेन ऑनेस्टली द स्टूडेंट वाज ग्रेशियस इनफ टू शेयर हिज एनालिसिस एज वेल। बहुत मेहनत की हुई एनालिसिस के ऊपर। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन एंड आई एम श्योर दैट दिस काइंड ऑफ एनालिसिस विल टेक यू अहेड इन लाइफ। आई एम सेइंग इफ यू स्टिक टू इट, तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन यू हैव डन and if you do more of it, I am sure you will improve। but यहाँ पे x less than y, ये आंसर 19 seconds में आ गया है। now if you look at the performance in the previous few questions and suddenly you look at this, you realize कि यार 19 seconds में ये solve करना शायद एक seasoned aspirant के लिए भी difficult होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 19 seconds में कैसे हो गया? तो यहाँ पे एक guess मारा गया है and because of which this was right। now what was the guess? I'll tell you that as well। तो x square plus 27x plus 180 110 है। अब पहले वाले में x square है, सेकेंड वाले में y square है, फाइन। बट फर्स्ट वाले में x को 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, सेकेंड वाले में y को सिर्फ 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सो द लॉजिक हियर वाज दैट बिकॉज y हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद अ स्मॉलर नंबर, इट मीन्स y इज लार्जर। It is not the correct way of solving this question, but that was basically the thought process behind this particular question, because of which you got it right. Now, again you have to have the right methods to solve a question, ठीक है। luck will play a part, but उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते because कोई जगह पे तुमको लक साथ देगा, 10 जगह पे साथ नहीं देगा। सो यू कांट रियली चेरी पिक द इंस्टेंसेस जहाँ पे लक ने साथ दिया है एंड यू देन अज्यूम दैट एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ लक। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू हैव साउंड लॉजिक। इवन इफ यू हैड सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, इफ यू न्यू हाउ टू फैक्टराइज 180 15 और 12 या -15 एंड -12 मिल जाते हैं x के वैल्यूज एंड y के कॉन्टेक्स्ट में -10 एंड -11 मिल जाते हैं
y के वैल्यूज. सो y का वैल्यू कुछ भी हो, x का वैल्यू हमेशा उससे कम होगा, बिकॉज ऑफ विच x इज लेस देन y. नाउ समवन कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 30-40 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग द प्रॉपर मेथड, एंड यहाँ पे 19 सेकेंड्स में मिल गया. आई वुड ऑलवेज प्रेफर समवन हु हैज अप्लाइड द प्रॉपर मेथड एंड गॉट इट राइट इन 40 सेकेंड्स कंपेयर टू समवन हु हैज गॉट इट इन 19 सेकेंड्स एंड हैज गॉट इट राइट इन 19 सेकेंड्स, राइट? क्यों? बिकॉज ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में दिस विल नॉट वर्क. ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में 40 सेकेंड्स करेक्ट आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू वर्क. लक वाला पार्ट यहाँ पे काम नहीं आएगा. सो प्लीज डोंट थिंक दिस टेस्ट इज अबाउट लक. इट इज अ लॉट मोर देन व्हाट इट लुक्स लाइक. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पार्टनरशिप्स का क्वेश्चन. ना पार्टनरशिप्स अगेन इज अ क्वेश्चन दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन टाइप. अरिथमेटिक के अंदर शायद पहले 5 या 7 सेशन के अंदर तुम्हारा पार्टनरशिप्स कवर हो जाता होगा. तो यहाँ पे शाहरुख एंड आमिर स्टार्टेड अ न्यू वेंचर. 75,000 60,000 इन्वेस्ट किया था. 3 महीने तक वो इन्वेस्टेड रहे. देन सलमान ऑल्सो इन्वेस्टेड. आफ्टर 3 more months आमिर लेफ्ट द वेंचर. तो 6 महीने के अंदर आमिर हैज लेफ्ट द वेंचर, एंड आफ्टर एट द एंड ऑफ द ईयर शाहरुख वुड हैव स्टेड पुट फॉर 12 months एंड सलमान वुड हैव स्टेड पुट फॉर 9 months. अब ये सारी चीजें दिख गई हैं. अब 11,100 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया है. तो शाहरुख का प्रॉफिट इज लेस देन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सलमान बाय हाउ मच अमाउंट? दैट इज द क्वेश्चन. यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन. कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन. मे बी इट विल टेक सम टाइम, 1.5 minutes इट माइट टेक, बट ये इजी क्वेश्चन है, इसको करना ही चाहिए. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट यहाँ पे अगेन 4 minutes 24 seconds हैव बीन स्पेंट एंड स्टिल आई कांट सी एन आंसर दैट हैज बीन मार्क्ड. तो अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज देयर. लॉपसाइडेड इन्वेस्टमेंट है, कॉन्सेप्चुअली काफी वीक चल रहा है यहाँ पे, बिकॉज दिस शुड हैव बीन अ वेरी रोबोटिक क्वेश्चन टाइप. ठीक है, दैट आई से दैट ओके 75,000 into 6 विल बी, और 60,000 into 6 विल बी आमिर का इन्वेस्टमेंट, 75,000 into 12 विल बी शाहरुख का इन्वेस्टमेंट, एंड 45,000 into 9 विल बी सलमान का इन्वेस्टमेंट. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है. फिर तीनों को ऐड करो, सलमान का शेयर निकालो, शाहरुख का शेयर निकालो, काम खत्म हो गया. इट वॉज दैट सिंपल. तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली अगर वीक हो एंड अगर इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं करो, देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. Now we look at another example from quant. SI plus CI plus allegation rule वाला क्वेश्चन था. 2 unequal पार्ट 7:9 में मैंने स्प्लिट कर दिया है, एंड छोटे वाले पार्ट पे 22% का इंटरेस्ट मिलेगा, बड़े वाले पार्ट पे X% का इंटरेस्ट मिलेगा, एंड अगर मैं दोनों पार्ट्स में डाल दूं तो क्यूमुलेटिवली मुझे 17.5% का इंटरेस्ट मिलेगा. नाउ दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर समवन हु अंडरस्टूड एलिगेशन रूल. 22 एंड 17.5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4.5 का. दैट करेस्पॉन्ड्स टू 9 पार्ट्स. तो 7 पार्ट्स विल करेस्पॉन्ड टू 3.5 का गैप. 17.5 minus 3.5 is 14. That is the answer to this question. But यहाँ पे the candidate, the student was not able to attempt this question at all. 0 seconds मतलब यहाँ पे visit ही नहीं किया है ये question. And this was probably because you spent a lot of time on the earlier questions. So this was an example of this thing जहाँ पे time management तुम्हारा problem हो सकता है. Because you have spent so much time solving questions that didn't deserve your attention, यहाँ पे easy questions करने के लिए मेरे पास time ही नहीं बचा. So that is again going to be a problem. तो ये मत करना. Whenever you are analyzing, this question will always take precedence over the maybe the first question that you solved and you spent 5 minutes and you got wrong. वो वाले question से ज़्यादा मैं इसको prioritize करूँगा. So अगर ये वाले क्वेश्चंस मिस हो रहे, आई विल ऑलवेज वांट यू टू रीलुक योर स्ट्रैटेजी एंड सी कि कौन से क्वेश्चंस पे टाइम स्पेंड करना चाहिए इन द फर्स्ट राउंड एंड कौन से क्वेश्चंस को सेकेंड राउंड के लिए रखना चाहिए. I have one more question here. The CP of an article is directly proportional to the time in which it is produced, and profit made in 7 hours is 85, 4 hours is 160%. अब ये all over the place है. कहीं पे profit दिया in terms of rupees, कहीं पे profit दिया in terms of percentage, selling price दोनों का same है, तो 10 घंटे में कितना CP होगा ये दिया हुआ है. Now the problem with this question is there are too many moving parts and it's an unconventional question that we have here. अब यहाँ पे you will look at the timer and you will be amazed कि यार ये क्या हो गया यहाँ पे. 17 minutes 20 seconds on this particular question. I think that this is a clear case of having given up in the middle कि यार मुझे करना ही नहीं है, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, let go of all of this, कुछ अलग चीज़ करते हैं लाइफ के अंदर, या फिर someone simply moves away from the system, यार नहीं करना, I am already disappointed, मेरे को ये स्कोर नहीं देखना, उसके लिए उसके जगह पे I will give up in the middle. So don't do that. You have to fight throughout the test. या मतलब I can't emphasize the importance of fighting it throughout those 2.5 hours that you have. So giving up in the middle is not an option. Please don't do that. एक एक मार्क के लिए फाइट करना पड़ेगा, तभी जाके स्कोर बनेगा, नहीं तो नहीं स्कोर बनेगा. ठीक है, अनलेस देयर वाज सम प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द इंटरफेस या कुछ अगर यहाँ पे रजिस्टर ठीक से ना, तो फिर देन अपोलॉजीज, बट आई थिंक दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस. अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस एंड दे एंड अप मिसिंग आउट ऑन फ्री मार्क्स दैट दे वुड हैव गॉट अदरवाइज. ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं विजुअल रीजनिंग का, ऑड वन आउट वाला. अब यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, यू हैव टू फिगर आउट व्हिच वन इज द ऑड वन आउट इन दिस सीक्वेंस. अब आई जस्ट लुक एट द फर्स्ट एलिमेंट, मैं बाकी कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ पहला एलिमेंट देख रहा हूँ. यहाँ पे योर बी इज राइट, यहाँ पे योर बी इज अ रिफ्लेक्शन,
यहाँ पे योर बी इज अ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे योर बी इज अ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे योर बी इज राइट, बी इज अ रिफ्लेक्शन, बी इज राइट। सो मुझे क्या पता चल रहा है, अगर x के अंदर b राइट होता तो राइट है, रिफ्लेक्शन राइट, रिफ्लेक्शन राइट, रिफ्लेक्शन राइट, इट मेक सेंस। तो प्रॉब्लम कहाँ पे यहाँ पे, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन 1 2 3, दिस इज द प्रॉब्लम। तो डायग्राम 2 जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है, उसमें अगर बी सीधा होता तो मेरा लाइफ ठीक हो जाता। तो मैंने जो गेस भी किया है 30 सेकेंड्स के अंदर, दैट इज नॉट अ गुड गेस, एंड दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम हियर। यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस है सिंपली। अगर प्रैक्टिस किया होता कि गेस कैसे करते हैं, हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, इट वुड हैव बीन मच ईजियर फॉर यू टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये मार्क्स तो नहीं जाने चाहिए, ये बहुत ईजी मार्क्स हैं जो मिस आउट हो रहे हैं। यहाँ पे भी एक चीज़ है, ऑड वन आउट मुझे पता करना है। नाउ इफ यू सिंपली लुक एट द काइंड ऑफ वे इन विच दिस वर्म इज मूविंग, पहले 6 o'clock पे या फिर यू कैन से साउथ में, देन दी टिप गोज टू साउथ ईस्ट, देन ईस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट, देन नॉर्थ, देन नॉर्थ वेस्ट एंड देन वेस्ट। तो ये ठीक है। अब लुक एट दी फर्स्ट एलिमेंट, और कुछ मत देखो, फर्स्ट एलिमेंट देखो, यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, तो स्टार चेंज हो गया। अब सर्कल की जगह पे ए आ गया, ए की जगह पे एरो आ गया, एरो की जगह पे एस आ गया, एस की जगह पे कुछ आना चाहिए ना, बट यहाँ पे एस ही है। अब एस की जगह पे यहाँ पे फिर से कुछ ग्लोब जैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज द प्रॉब्लम हियर। सो आई कैन सिंपली से दैट फिगर 5 इज एन इशू हियर। तो अगर मैं सिर्फ बेसिक चीजें भी कर लूँ ना तो भी मेरा काम निकल जाएगा मेरे हिसाब से। दिस विल काउंट एज अ सिली मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कुछ सिली मिस्टेक हो गया है। मे बी यू मार्क द आंसर बिकॉज यू आर इन अ हरी एंड यू वांटेड टू मार्क समथिंग एंड मूव इट, तो ऑप्शन 3 मार्क कर लिया, बीच का ऑप्शन जो था वो ऑप्शन सी मार्क कर लिया। बट दिस वॉज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन अगेन। सो लैक ऑफ प्रैक्टिस, सिली मिस्टेक्स विल हार्म योर चांसेस। अब LR के अंदर अगर मैं सेम चीज को देखूं, मैंने वर्बल नहीं देखा बट LR इज अगेन इफ आई हैव सीन समथिंग, देन यू कैन सी दैट इफ यू लुक एट दीज क्वेश्चंस दैट आई हैव 9 क्वेश्चंस दैट आई हैव हियर बिकॉज द स्क्रीनशॉट कुड कम ऑफ ओनली 9 क्वेश्चंस इन वन स्क्रॉल। तो मैंने वो दिखाने के लिए यहाँ पे 9 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लिया है। बट इफ यू लुक एट इट, यू हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ऑन दीज 9 क्वेश्चंस, मतलब 20 मिनट या उससे ज्यादा स्पेंड किया है ऑन दीज 9 क्वेश्चंस। एंड व्हाट इज द आउटपुट? यू हैव गॉट एन आउटपुट ऑफ 2 मार्क्स। तो यहाँ पे देयर नीड्स टू बी सम टॉपिक्स दैट यू आर एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग एट, मतलब सिलोजिज्म यू शुड बी स्ट्रॉन्ग एट, जो यहाँ पे सिंबल बेस्ड कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं दैट यू शुड बी गुड एट, इन टर्म्स ऑफ द नंबर सीरीज यू शुड बी गुड एट, कोडिंग यू शुड बी गुड एट। तो कुछ तो यहाँ पे टॉपिक्स होंगे जिसको लेके यू आर एब्सोल्युटली गुड, एंड वो टॉपिक्स अगर पता होंगे तो यू विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल टेस्ट। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। ऐसा नहीं होगा कि एक टेस्ट के अंदर ये 5 मेरे टॉपिक बन गए, एक के अंदर मेरे ये नहीं बने। सो दैट विल नॉट बी द केस। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव सम स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। तो ये तो समझ में आ गया कि अभी क्या नहीं करना चाहिए। सो व्हाट एग्जैक्टली शुड यू बी डूइंग राइट नाउ? The first thing you have to do is you have to focus on these topics that I have mentioned. I know that there is very less time left, but इसमें कर सकते हो। अरिथमेटिक पे फोकस करो, परसेंटेजेस, रेशियोज, एवरेजेस, यू हैव टू बी रियली गुड एट दीज टॉपिक्स। इफ पॉसिबल टाइम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये कर लो, यू विल बेनिफिट अ लॉट। Reading comprehension passages, you have to make sure that you have a strategy of solving RCs, grammar based questions. Easily you can cover rules in the next 1 or 1.5 days, आराम से हो सकता है। verbal reasoning भी अगर question solve करोगे, you will get to understand a lot of techniques that exist in verbal reasoning. series based questions, analogies based questions, visual reasoning के अंदर बहुत easily cover कर सकते हो within a matter of a week. अब यहाँ पे again needless to say यार सारे sitters को crack करना ही चाहिए। सारे questions एक ही mark देने वाले हैं, rather than spending time on the difficult questions, spend time on the easier questions, get that 1 mark, and उसके बाद देख लो अगर टाइम बचता है तो कर लो difficult question. But sitters crack करना जरूरी है। अगर sitters crack नहीं हो रहे because of lack of conceptual clarity और lack of time और अगेन जो भी मतलब यू आर नॉट एलोकेटिंग योर रिसोर्सेज प्रॉपरली, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो और इसके सिटर्स अगर नहीं क्रैक हो रहे हैं, इट्स गोइंग टू लीड टू अ डिजास्टर। फिर 100 क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डिसाइड वेरी 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 अर्ली टू द क्वेश्चन वेदर यू वांट टू सॉल्व इट और नॉट। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन देखा फिर सोचा मुझे क्या करना चाहिए फिर मैंने डिसाइड किया। नो, you can decide within 30 seconds whether you are going to be able to solve a question or not. थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिखता है उसको छोड़ दो यार, नहीं होने वाला सॉल्व। Why are you struggling with these kind of questions? Let people who are scoring 180 struggle with that question type ना। Why are you struggling with that question type? बिल्कुल मत उसके बाद स्ट्रगल करना। 30 सेकंड में नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो। 60-70 क्वेश्चन अच्छे से कर लो जिसका पक्का तुमको पता है आंसर ये आने वाला है करके, एंड द रेस्ट ऑफ इट यू विल सी द मैजिक ऑफ मार्किंग क्वेश्चंस, एंड उससे तुम्हारा आराम से 100 के आसपास पहुंच सकता है स्कोर। 60, 70, 80 जेन्युइन अटेम्प्ट्स करना इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। कोई भी सीईटी के लेवल में बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। यू हैव टू बिलीव दैट यू विल बी एबल टू डू दिस, दैट इज द मेन थिंग, एंड यू हैव टू डिसाइड वेरी क्विकली विच क्वेश्चंस डिजर्व योर अटेंशन एंड विच क्वेश्चंस डू नॉट डिजर्व योर अटेंशन।
सो यहाँ पे अटेंशन अगर पता करना है तो बी अटेंटिव थ्रू आउट द टेस्ट। ऐसा नहीं है कि बीच में मैंने छोड़ दिया 15-20 मिनट, मैंने बोला अरे कुछ हो नहीं रहा छोड़ दो, या फिर एक क्वेश्चन मिला तो मैं उसको किए जा रहा हूँ विदाउट वरिंग व्हाट माय टाइमर इज टेलिंग मी, तो दिस इज गोइंग टू बी अगेन अ डिजास्टर्स थिंग। सो बी अटेंटिव थ्रू आउट द टेस्ट। कोई यहाँ पे 2.5 आवर्स का ही टेस्ट, ऐसा नहीं कि कुछ 10 घंटे तुमको मैराथन भागना, ऐसा नहीं है। इट्स अ 2.5 आवर टेस्ट, यू कैन ईजिली बी अटेंटिव फॉर 150 मिनट्स। प्लीज पे अटेंशन टू योर टेस्ट। अगर नहीं करोगे तो यू विल डेफिनेटली हैव टू रिपीट अ ईयर, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगेन डोंट गिव अप इन द मिडल ऑफ द टेस्ट, एज आई मेंशन्ड अर्ली, प्लीज उसको गिव अप मत करना। That is the worst thing that you can do when you are taking a test, that you give up in the middle of the test, and that is not going to help you in any manner. The next thing is there are no shortcuts. I see a lot of people still asking me कि shortcuts बताओ, ये कैसे जल्दी करेंगे, वो कैसे जल्दी करेंगे। यार कोई shortcut नहीं होता, to be very honest, right? And होता भी है shortcut तो उसका नहीं utility होगा। So people who are at 160, 170 marks, उनके लिए shortcuts, चलो I can suggest 10 shortcuts that they can benefit from. But people who are already at 100 या people who are at 60, 70, 80, उनको shortcuts की जरूरत नहीं है। They just need to be able to solve the questions that need to be solved in the fastest possible amount of time. That's it. और कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। आई नो इट माइट साउंड वेरी ब्लंट टू अ लॉट ऑफ यू एंड यू माइट फील कि अरे कुछ भी बकवास कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता, शॉर्टकट से ही क्रैक होता है। दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस देर आर नो शॉर्टकट्स, स्पेशली इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, देर आर नो शॉर्टकट्स फॉर यू। प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड शॉर्टकट्स, कुछ फायदा नहीं होने वाला शॉर्टकट्स के पीछे भाग के। एंड ऑफ द डे टेस्ट के अंदर जाओगे, वहाँ पे एक शॉर्टकट अप्लाई करोगे, आंसर शायद गलत हो जाएगा, यू विल हैव टू रिमेंबर टू मेनी थिंग्स। आई डोंट थिंक इट इज वर्थ द एफर्ट एट ऑल, सो प्लीज डोंट रन बिहाइंड शॉर्टकट्स, देर आर नो शॉर्टकट्स, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में प्लीज गेस एट द एंड। यहाँ पे भी मतलब दी टेस्ट दैट आई एनालाइज्ड, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस गेस नहीं किए थे, 100 क्वेश्चंस गेस नहीं किए थे। अगर 100 क्वेश्चन गेस कर लेते यू वुड हैव गॉट 20 मार्क्स मोर, यार उससे मतलब थोड़ी खुशी मिलती ना। सो व्हाई आर यू depriving yourself of the happiness of getting some marks, right? So please guess answers towards the end. ऐसे बिल्कुल मत करना कि एक्चुअल टेस्ट में जाके मैं गेस करूंगा, ये सब चीज के पीछे मत भागना। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एक्चुअल टेस्ट में आके फिर नया सिचुएशन अपने सामने क्रिएट करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर ब्रेन टू अडैप्ट। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। ये सब काम पहले कर लेना एंड आई एम श्योर योर ब्रेन विल थैंक यू ऑन द डे ऑफ द टेस्ट एंड विल डू अ मच बेटर जॉब देन इट वुड हैव डन अदरवाइज। Do let me know if you have some doubts regarding this in the comment section below. I know I have spoken some bitter truths here, but then again these need to be said and these need to be heard, right? ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ everything is fine, 2 दिन में क्रैक कर लोगे, 4 दिन में क्रैक कर लोगे। It's not a feel good thing at the end of the day. The people who are scoring 150, 160 marks in mocks deserve to score those 150, 160 marks because they have put in some amount of effort, right? So if you put in some amount of effort, even you will deserve to score the marks. तो यहाँ पे effort डालना बहुत जरूरी है। Make sure that you do whatever you can in the next 7 days or so and make sure you are putting in your best performance. उसके बाद में you can decide कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, but please don't give up now, one, and second thing, be attentive, be mindful throughout the test, make sure you're making the right decisions and do well at the test, ठीक है। Do let me know what did you think about this video in the comment section below. If you liked the video, do leave a like and do share it with your friends who are struggling to score marks, and stay tuned on the channel for the next video.